আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স। ছবিতে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন কক্সবাজারের রামু ক্যান্টনমেন্টে একটি ইমার্জেন্সি রানওয়ে, যেখানে কোনো জরুরি পরিস্থিতি বা যুদ্ধকালীন সময়ে যে কোনো যুদ্ধবিমান বা পরিবহন বিমান উড্ডয়ন বা অবতরণ করানো সম্ভব। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है आसिफ अली और आप देख रहे हैं आसिफ अली ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज बात करेंगे बांग्लादेश एयरफोर्स के बारे में। बांग्लादेश एयरफोर्स ने फोर्सेस के 2030 के गोल के मुताबिक जो फाइटर जेट्स हैं उनको बांग्लादेश की ज़मीन और बांग्लादेश के जो रोड्स हैं उन पे टेक ऑफ और लैंडिंग करने की जो ट्रेनिंग है वो स्टार्ट कर दी है। और अब बांग्लादेश एयरफोर्स जो है वो कामयाबी के साथ किसी भी जंगी हालात में बांग्लादेश की रोड से टेक ऑफ भी कर सकेगी और लैंड भी कर सकेगी। इसी तरह से बांग्लादेश की जो ज़मीन है, जो मैदानी इलाके हैं, वहाँ पे भी ये जो फाइटर जेट्स हैं ये टेक ऑफ भी कर सकेंगे और लैंड भी कर सकेंगे। इसी तरह से पाकिस्तान आर्मी ने भी पाकिस्तान के जो मोटरवेज़ हैं वहाँ से फाइटर जेट्स को टेक ऑफ और लैंड करने की ट्रेनिंग दी थी और कामयाबी के साथ इसको अचीव कर लिया था। तो अब बांग्लादेश एयरफोर्स का भी बड़ा माइलस्टोन जो है वो अचीव कर लिया। यहाँ पे भारत ने भी इस तरह की प्रैक्टिस की थी, लेकिन भारतीय पायलट जो हैं वो इस तरह की प्रैक्टिस करने में फ़ेल हो गए थे और टेक ऑफ और लैंडिंग करने में फ़ेल हो गए थे। लेकिन यहाँ पे बांग्लादेश ने अब पाकिस्तान एयरफोर्स की तरह अपने जो फाइटर जेट्स हैं और अपने जो पायलट्स हैं उनको रोड्स और लैंड से टेक ऑफ करने और लैंड करने की यहाँ पे जो ट्रेनिंग है वो दे दी है और कामयाबी के साथ इसको कंप्लीट कर लिया गया है। किसी भी जंगी सूरत हाल में जो रोड्स से फाइटर जेट्स का लैंड करना और टेक ऑफ करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और तेज़ी के साथ आप रिस्पॉन्ड कर सकते हैं और दुश्मन की फोर्सेस पे अटैक कर सकते हैं, दुश्मन को रोक सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा एक माइलस्टोन जो है बांग्लादेश एयरफोर्स ने यहाँ पे अचीव कर लिया और फोर्सेस के 2030 के गोल के मुताबिक तेज़ी के साथ बांग्लादेश आर्मी, बांग्लादेश एयरफोर्स को यहाँ पे ट्रेनिंग दी जा रही। तो ये किस तरह से सब कुछ हुआ है और बांग्लादेश एयरफोर्स ने किस तरह से ये माइलस्टोन अचीव किया, ये सारी डिटेल जानते हैं आज की इस रिपोर्ट में। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স। ছবিতে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন কক্সবাজারের রামু ক্যান্টনমেন্টে একটি ইমার্জেন্সি রানওয়ে, যেখানে কোনো জরুরি পরিস্থিতি বা যুদ্ধকালীন সময়ে যে কোনো যুদ্ধবিমান বা পরিবহন বিমান উড্ডয়ন বা অবতরণ করানো সম্ভব। দেশের দুর্যোগ বা যুদ্ধের কারণে বিমানবন্দর ব্যবহারের অনুপযোগী হলে বা জরুরি অবস্থায় যেন মহাসড়কে এয়ারক্রাফট ওঠানামা করতে পারে সে পরিকল্পনা করছে সরকার, যা যুদ্ধকালীন সময় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। এই ব্যবস্থার নাম এয়ার স্ট্রিপ, যার অর্থ হলো এয়ারক্রাফট ওঠানামা করা যায় এমন রানওয়ে। এক্ষেত্রে একটি এয়ারক্রাফট ওঠানামার জন্য ন্যূনতম 3 কিলোমিটার দৈর্ঘ্যের রানওয়ের প্রয়োজন হবে। সরকার ও সিভিল এভিয়েশন মিলে বিদেশের আদলে কিছু কিছু মহাসড়কের আইল্যান্ড তুলে দিয়ে এয়ারক্রাফটের জরুরি অবতরণের ব্যবস্থা করছে। জানা গেছে এয়ার স্ট্রিপের প্রাথমিক আলোচনায় বঙ্গবন্ধু সেতু পশ্চিম প্রান্ত থেকে সিরাজগঞ্জের হাটিকমরুল পর্যন্ত মহাসড়কের একটি অংশ এবং খুলনা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের আশেপাশে মহাসড়কের একটি এলাকা রয়েছে। মূলত যুদ্ধক্ষেত্রে প্রতিটি দেশই চেষ্টা থাকে কিভাবে আগে শত্রুপক্ষের বিমান ঘাঁটিগুলোর এবং বেসামরিক বিমানবন্দরগুলোর রানওয়ে ধ্বংস করে দেওয়া যায়। ফলে শত্রুপক্ষের যতই শক্তিশালী বিমান বাহিনী হোক না কেন তার কাজে দেয় না, কারণ যুদ্ধবিমান উড্ডয়ন বা অবতরণ কোনোটাই করা যায় না। ফলে আধুনিক যুদ্ধবিমান থাকা সত্ত্বেও তার কোনো কাজে আসে না। আর বর্তমান পৃথিবীতে যুদ্ধে বিজয়ী হতে হলে বিমান বাহিনীর সাপোর্ট অবশ্যই প্রয়োজন। এই বিষয়ে এয়ার ভাইস মার্শাল মফিদুর রহমান বলেন, জাতীয় মহাসড়কে এয়ার স্ট্রিপ তৈরি বিষয়টি অনেক দিন ধরেই রয়েছে। বিষয়টি প্রতিরক্ষার সাথে সম্পৃক্ত হলেও বিশেষজ্ঞই মতামত দেবে, কারণ চাইলেই সড়কের ওপর বড় উড়োজাহাজ অবতরণ করতে পারবে না। সড়কের সে পরিমাণ শক্তি থাকতে হবে। প্রতিবেশী দেশ ভারত 2021 সালে প্রথমবারের মতো রাজস্থানে বারমেরে 925 নম্বর জাতীয় সড়কে এয়ার স্ট্রিপের উদ্বোধন করে। जी, तो ये था आज का वीडियो। आप बांग्लादेश एयरफोर्स के जो फाइटर जेट्स हैं वो रोड का इस्तेमाल करके टेक ऑफ और लैंडिंग कर सकेंगे। यहाँ पे बांग्लादेश आर्मी जो है बांग्लादेश एयरफोर्स को म्यांमार एयरफोर्स का सामना है। म्यांमार की जो एयरफोर्स है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और बांग्लादेश के इलाकों में काफ़ी ज़्यादा इंटरफेयर करती है और बॉर्डर एरिया में मार्टर शेल वगैरह गिराती है। इसी वजह से अब बांग्लादेश ने ये रियलाइज़ कर लिया कि एक स्ट्रॉन्ग एयरफोर्स और एयरफोर्स की जो ट्रेनिंग है उस पर बहुत ज़्यादा गौर किया जा रहा है और यहाँ पे बांग्लादेश के पायलट्स को अब ट्रेनिंग दी जा रही है और वो रोड का इस्तेमाल करके फ़ाइटर जेट्स को टेक ऑफ और लैंड कर सकेंगे। और ये म्यांमार का जो बॉर्डर एरिया का इलाका है उसके पास ये सारी सरगर्मियाँ सरअंजाम दी गई और इस तरह के एमरजेंसी रोड जो हैं वो अब यूज़ किए जाएंगे और किसी भी जंगी हालात की सूरत में म्यांमार को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। और इस ट्रेनिंग के बाद भारत और म्यांमार जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैरान हो गए हैं कि किस तरह से बांग्लादेश ने ये अचीव कर लिया है और
बांग्लादेश के जो पायलट्स हैं वो अब रोड का इस्तेमाल करके फाइटर जेट्स को टेक ऑफ और लैंड करेंगे। तो क्लियर एक मैसेज दिया गया भारत और म्यांमार को कि किसी भी सूरत बांग्लादेश की एयरफोर्स जो है वो बांग्लादेश के इलाकों को डिफेंड करेगी और किसी तरह की जो इंटरफेरेंस है अपने इलाके में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो पाकिस्तान एयरफोर्स के साथ साथ अब बांग्लादेश एयरफोर्स ने भी ये ट्रेनिंग कंप्लीट कर लिया और बांग्लादेश एयरफोर्स के पायलट जो हैं वो अब रोड का इस्तेमाल करके बांग्लादेश एयरफोर्स के जो फाइटर जेट्स हैं उनको टेक ऑफ और लैंड कर सकेंगे। तो ये बांग्लादेश एयरफोर्स की बहुत बड़ी अचीवमेंट है और फोर्सेस के 2030 के गोल के मुताबिक बांग्लादेश तेज़ी से जो है अपनी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स को ट्रेनिंग दे रहा है। तो आप क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में? अपनी राय से मुझे कमेंट्स में आगाह करें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।